ایک بادشاہ اور ایک نیک لڑکی کا خوبصورت واقعہ۔ پیارے دوستو، روز کی طرح آج ہم پھر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو۔ اسے پورا دھیان سے ضرور دیکھیں، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، بڑی محنت کر کے تیار کیا ہے۔ ایک جانی شخص جب اپنی بیٹی جیسی نیک لڑکی سے زنا کرنے لگا تو اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا، یہ آج کی ویڈیو میں دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور کانوں کو آپ ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، جو لوگ دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں، ایک دن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں بہت اچھی طرح جان جائیں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے بس اتنی کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، ایک ملک شام میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ جب بھی وہ کون جوان خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اس کو اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریض بن جاتی تھی یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی دوائی استعمال کیا کرتا تھا اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوائی اثر کر جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا تھا، لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس دوائی کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی اس بری عادت سے بہت زیادہ بیزار بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ کے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا تھا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا تھا۔ پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی اور باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھی۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور ایک ایک پائن ان کے جسم سے وصول کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے گا، ایک طرف تو بادشاہ انتہا رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی ہتوں سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کرتا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے، اور کوئی اگر شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھا کر محل میں لے جاتا تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس نمت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے برے وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج سے ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے انتہا حسین اور جمیل لڑکیاں لے کر آتا تھا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا تھا اور پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بد کا چکر لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو باقی 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا اور کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھر میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے
बुराई छोड़ने की बात करता तो वज़ीर उसको ऐसी तरकीब से मुतमईन कराता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वज़ीर की बीवी तो नहीं थी, वह बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जबान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज़्यादा नेक थी। वह इतनी ज़्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोज़ा रखती और रात का बेजदस्ती में गुजार देती। वह बादशाह और अपने वज़ीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वह हर वक्त इनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वज़ीर के बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर बैठी थी। वह तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वह अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वह सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वह करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। मैं सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ाया और आसपास का नज़ारा देखने लगा कि अचानक उसको कानों में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। तो वह हैरान हो गया और आगे बढ़कर उसकी आवाज़ की तरफ झांका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर जो उसके वज़ीर का था, वहाँ सहन से सहन के बीच एक जवान और इंतहा खूबसूरत लड़की का जा नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचक छाया में रो रही थी। बादशाह का तंज आंसू इंतहा हो पहुँच गया था और वह कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा रही जब उसने सुना कि वह खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो हिचक छाया में रोने लगा। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहाँ खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया था कि वह आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी, शायद कि उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जानमाज समेट ली और उठकर अपने कमरे में चली गई। बादशाह यह तो जानता था कि यह उसके घर का वज़ीर है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि वह खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसके हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने खादिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर खादिमा ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो आपके वज़ीर की एक इकलौती बेटी है जो इंतहा इबादत करते गुजार रही है। बादशाह को मजीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वह महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल यूं हल्का फुल्का हो गया था जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने उसी वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना तस्कीन किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वज़ीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वज़ीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ उनके घरों में छोड़ आओ। यह सुनकर वज़ीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से अच्छी तौबा कर ली तो वह मुफ्त में हसीन और जमील लड़कियों से कैसे लुत्फ़ हासिल करेगा। चनांचे बादशाह को कायल करने लगा कि यह काम आपका हक है और यह काम तो आप हमेशा से करते चले आए हैं, लेकिन
बादशाह ने उसकी एक न मानी। जब वजीर अपनी बातों से बाज ना आया तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं यह काम करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की में सबसे पहले पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि हुजूर आप हुक्म करें, मैं लड़की आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया तो तुम्हारी बेटी मुझे शहर में नज़र आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर लस गया। वह अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए सोचा भी नहीं सकता था। फिर वह भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले, या वो पागल हो जाती थी या मर जाती थी। वह अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा वह बादशाह के पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि यह मेरा हक है और यह काम तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी भी लड़की को परेशान नहीं करोगे और ना ही मुझे ऐसे गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा किया और बादशाह से कहा कि वह सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने एक मौजज़ा कर दिया कि दोनों मजीद गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू हो गए, नेक रास्ते पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि हमारे चैनल अकरम वॉइस को सब्सक्राइब कर लें।